Welcome students. Today we will start our new chapter cube and cube roots. Okay, so this is 7th chapter of our book. In cubes and cube roots, before starting this cube and cube roots, first of all we will discuss the points we discussed in square and square roots. Okay, so what we have studied in square and square root, that we are doing the prime factorization of the given number and we are making their pairs. Same we will do here in cube and cube root also. Okay, for example, first of all we will take one example. We are taking a number, we are taking 216. This number we are taking. Okay, so first of all we have to do the factors of this number. So it is an even number, we will start from 2. Just see, 2 ones are 2, 0 and 8, 2 5s are 10, 2 4s are 8, again 2 2s are 4, 2 7s are 14. Now divisible by 3, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So for 216, what the factors we are getting? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Okay, so for cube and cube root we make the pair same as square and square root, but we will make pair of 3 numbers. For 3 numbers we are making pair. Okay, 3 1 2 3, so 2 is the number. Again 1 2 3, again we are getting 3. So what is the cube root for this 216? It is 3 2s are 6. 6 is the cube root for 216. Okay, and if you have to find out the cube, अगर आपको इसका क्या find out करना है? 6 का cube. So this will be represented 6 to the power 3. Okay, and this 6 you will multiply 3 times. इस 6 की multiply कितने times करेंगे? 3 times. 3 से multiply नहीं करनी है, उस नंबर की 3 times multiply करनी है. Okay, so 6 6 are 36. Again 36 6 are, it is 216. Okay, one more example we will see so that this is clear to you all. So one more example we will take. For example, we are taking 1000. So the same method we will apply. It is even, so from 2 we will start. 2 5s are 10. Again 2 2s are 4, 2 5s are 10. 2 1s are 2. This 2 2s are 4, 2 5s are 10. Now it is divisible by 5. So 5 2s are 10 and 5 5s are 25. 5 5s are 25. Again 5 1s are 5. So what the factor we are getting? 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5. Sorry, it is 5. Now check the pair. 3 and 3. So what is the cube root? Cube root क्या होगा आपका? It is 2 5s are 10. Okay, अब आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका आया आंसर करेक्ट है या नहीं. 10 का आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब. सो इट इज 10 into 10 into 10. 10 tens are 100 and 110, it is 1000. So this is the method to finding the cube root. ओके, क्यूब रूट फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. मेथड आपका सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, प्राइम नंबर्स आपको यूज करने हैं एंड यू हैव टू मेक द पेयर. क्या बनाना है आपको? पेयर बनाना है. और पेयर कितने नंबर्स का होगा? 3. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पेयर आपका क्या था? 2 नंबर्स का था. क्यूब एंड क्यूब रूट में पेयर इज ऑफ 3 नंबर्स. ओके, सो few more question we will discuss so that it is easier for you to solve your exercise 7.1. okay, so cube and cube root इस चैप्टर में आपका मेथड सेम है. मेथड एक ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इस मेथड से आपको फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चन आपकी चेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल आपके एक्सरसाइज का ही फर्स्ट क्वेश्चन है. यू हैव टू टेल, आपको बताना है कि विच ऑफ द नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स. कौन से दिए गए नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है. फर्स्ट वन इज 216, दैट वी हैव डिस्कस. ठीक है, 216 इज अ परफेक्ट क्यूब. नाउ वन मोर नंबर इज देयर. आपको एक और नंबर दे रखा है, इट इज 128. ओके, आपसे पूछा है क्या ये परफेक्ट क्यूब है
या नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब का मीनिंग क्या है कि जब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो जितने भी आपके पेयर हैं 3 का ही पेयर बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 to 8 को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2। नाउ चेक द पेयर। 3 का पेयर बन गया, अगेन 3 का पेयर, बट ये 2 आपका क्या है? दिस 2 इज द एक्स्ट्रा वन। ठीक है, आपके पेयर में एक पेयर आपको मिल गया है, अगेन 1 मोर पेयर यू गॉट, लेकिन एक 2 एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 का पेयर बन गया तो हो गया। जितना भी आपके पास टोटल प्राइम फैक्टर्स आए हैं आपका 3 3 का क्यूब बनना है। 2 इज एक्स्ट्रा, 2 का आपका पेयर नहीं बना है, इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, सो सेम you will solve first question of your exercise. Now we will discuss second question of your exercise 7.1. So question number second of your NCERT book, it is for example आपको एक क्वेश्चन दे दिया है 100। ठीक है, now क्वेश्चन क्या है? You have to find the smallest number। आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, by which each of the following number must be multiplied, जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए कि ये क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाई बाय 100 सो दैट द रिजल्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। दिस इज योर क्वेश्चन। सो मेथड सेम वही है, आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने हैं? यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5। ये आपके फैक्टर हो गए। नाउ हाउ यू विल राइट इट? 2 into 2 into 5 into 5। ओके, नाउ परफेक्ट क्यूब का मतलब जो भी नंबर है उनका क्या बन रहा है? कंप्लीट क्यूब बन रहा है। आपके 3 का पेयर है। नाउ चेक, क्या 2 का पेयर है? नो। क्या मिसिंग है? 1 2 इज मिसिंग। 5 के पेयर में क्या मिसिंग है? 1 5 इज मिसिंग। ओके, सो क्या चाहिए आपको? 2 into 5 दैट इज 10। आपको 10 और चाहिए कि 100 क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब। सो 100 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 10 से। तो ये क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब। ओके, सिंपली सेम इट इज सेम एज हमने किसमें किया था? स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में भी हमने सेम यही किया था, बट हमने क्या चेक किया था? पेयर ऑफ 2। और यहाँ पे आपको क्या करना है? पेयर ऑफ 3। पेयर ऑफ 3 बनने के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा चाहिए वो आपको इसमें चेक करना है। ओके, वन मोर क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन दिस। आपको क्वेश्चन दे दिया है 72। 72 में किस स्मॉलेस्ट नंबर की मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए? सेम मेथड, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। नाउ यू कैन इजिली टेल ना, 2 का पेयर है, 2 कंप्लीट पेयर है आपका, बट 3 के पेयर में क्या मिसिंग है? 1 3। 1 3 इज मिसिंग। 2 का आपका कंप्लीट पेयर है, लेकिन 3 का पेयर कंप्लीट करने के लिए क्या मिसिंग है? 1 3। तो 72 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 3 से, कि ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब। और वो परफेक्ट क्यूब क्या होगा? 3 2 6, 7 3 3 7 it is 21। So that perfect cube is 216। ओके, सेम यही मेथड है आपके पास। क्वेश्चन क्या है? चेंज है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? यू हैव टू टेल द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच यू विल डिवाइड। अभी तक आपको बताना था स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है स्मॉलेस्ट नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें सेम वही होगा, आपने क्या करना है? जिसका पेयर नहीं बना उससे आपको डिवाइड कर देना। ओके, वन ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, नंबर आपको दे रखा है 135। ओके,
क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इज टू बी डिवाइड सो दैट द रिजल्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो सबसे पहले हम इसकी क्या फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर। 2 से पॉसिबल नहीं है, फ्रॉम 3 5 6 7 8 एंड 9 3 से पॉसिबल है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। नाउ सेम आपको वही देखना है, किसका पेयर नहीं बना। सो दिस इज अ कंप्लीट पेयर। कौन एक्स्ट्रा है, 5, तो 5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। सो 1 3 5 इट शुड बी डिवाइड बाय 5 सो दैट द रिजल्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपसे पूछा नहीं है बट यू हैव टू टेल द रिजल्ट ऑल्सो। ओके, सो रिजल्ट इज 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35, 27 इज योर रिजल्ट। ओके, मीन्स अगर आपसे पूछा है किससे मल्टीप्लाई करें, तो जो एक्स्ट्रा है उसका पेयर कंप्लीट कर दो, उसी से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपसे पूछा जाए किससे डिवाइड करना है, तो जो एक्स्ट्रा है उससे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ओके, नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज। सो नाउ सी व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिन ऑफ साइड्स। साइड्स आपको दे रखी हैं, क्यूबॉइड बनाया है, साइड इज 5 2 and 5. Now the question is how many such cuboids will be needed to form a cube? ऐसे कितने क्यूबॉइड्स चाहिए कि ये क्या बन जाए, एक क्यूब बन जाए। ओके, मीन्स whatever the pair is not complete we will complete that pair। हमें क्या नहीं, क्या चाहिए इसमें, आपके पास है 2 इंटू 5 इंटू 5। 2 का पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें 2 2s चाहिए, 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें एक 5 चाहिए। सो it is 20. So how many cuboids you need? You need 20 cuboids ताकि आपका ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब। ओके, so this is all regarding your exercise 7.1. With the help of this video, complete your exercise. We will discuss next exercise in our next video. Thank you. Take care.